These are the contents of the today session. Off-grid PV fundamental concept, typical of off-grid application, PV off-grid system components, off-grid system configuration, economic and market, and designing of off-grid PV system and simulation software. The simulation software will not discuss today. It will discussed later for the training session, not for the value-added session. So today I will discuss these uh, five of the above. Last one will be discussed later. What are the different size of the off-grid system generally we are using in the industry, in the household and the village area, etc. What is the capacity? Suppose that if you are using large scale power supply, uh, like for the industrial application, so its capacity should be more than 300 kilowatt. This slide shows that what is the capacity of the different plant that are using in the industry, that are using in the village, that are using in the school or hospital and single houses for the lighting purposes. So from this slide you can see for the industrial purposes or industrial applications approximately 300 kilowatt capacity of the solar photovoltaic system is defined, more than 300 kilowatt, because we are using heavy equipments in the industry, so the capacity should be more. Generally in the supply for the complete village, like a village having 500 family or 1000 family or more than 1000 family, the capacity should be less than 300 kilowatt and etc. If you want to set up more than this capacity you can, but general, this is the general concept. This is the general concept that show that how much capacity should be of the plant in the just a minute please. So approximately 20 students is joining today, and all of you please fill the feedback form, then leave the session. Otherwise, you will did not get the certificate. So be careful about it. Oh yeah. So generally for the complete village, the capacity is less than 300 kilowatt, and for the smaller school and for school and hospital, generally you can see day to day for the all the government organization like school, hospital, colleges are have compulsory to set up a solar photovoltaic system. So generally the capacity should be less than 10 kilowatt. 10 kilowatt capacity is compulsory to less than 10 or approximately 10 kilowatt setup capacity of the solar photovoltaic system should be compulsory to install any every school or hospitals or colleges to get the certification by the government. And for the supply for the single houses, generally our requirement is approximately 2 to 3 kilowatt, but at least 1 kilowatt is compulsory. 1 kilowatt, less than 1 kilowatt or 1 kilowatt is compulsory. But generally in the rural area you can see people, the budget of the person is very low, so generally they are installing less than 1 kilowatt. And what is the capacity for the lighting purposes? It may be less than 1 kilowatt, around 800 watt, 700 watt, and 400 watt. In our college, in the solar lab, we have around 800 watt solar photovoltaic system.
having different panel having different capacity. Someone have 200 watt. There are two panel having capacity 200 watt. I have four panel having capacity 100 watt, and there are four solar photovoltaic system having 40 watt capacity. So all these such types of the panel are level in the solar सर belt. आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, बैकग्राउंड से भी आवाज आ रही है। बैकग्राउंड से आवाज तो कुछ नहीं आ रही, कोई नहीं बोल रहा है यहाँ पे। ये मुझे लग रहा है इसी में जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लैपटॉप से जा रहा है तो वो ये यस सर, दो दो बार आवाज आपकी सुनाई दे रही है, हमको लग रहा है। अब वो लगा रहा हूँ तो फिर उससे साउंड कम आ रही है, दिक्कत ये है। मैं डायरेक्ट विदाउट ईयरफोन का बोल रहा हूँ ना, इसीलिए ये चीजें हो रही होगी, क्यों हो रही है। चलो मैं देखता हूँ इसका बना के। बेटा, वो व्हाइट वाला जो ईयरफोन था कहाँ है? ईयरफोन जो था व्हाइट वाला, ध्यान, व्हाइट वाला जो ईयरफोन था वो लेके आना जो, कहाँ है वो ईयरफोन देने में? इस ईयरफोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया, पहले सही चल रहा था, अभी काम नहीं कर रहा, इस वजह से प्रॉब्लम। हेलो, अब ये सही है? ये सही है या नहीं है? तो साउंड कम अब स्लो आ रही है सर आवाज आपकी। है। हेलो, अब सही है? यस सर, अब सही है। लेकिन फिर इको हो रहा है, ये यस सर, आवाज फिर से आ डबल रही है। साउंड आ रही है। वो देखो मेरा ये जो ईयरफोन है वो लेकर आ, वहीं पर उसी कंप्यूटर डेस्कटॉप के पास। हेलो, 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 ये अब क्लियर है? क्या ये क्लियर है? हेलो। यस सर, अब क्लियर है। हाँ यस चलो, सर। आवाज काम चला दो, क्योंकि ये दिक्कत हो रहा है। इसको काम तो उसको हटा, चलिए स्टार्ट करेगा। यहाँ पे कोई डिस्कस कर रहा है। तो ये स्लाइड्स ये शो करता है कि क्या कैपेसिटी होनी चाहिए प्लांट की, on the basis of large scale village power supply for the solar residential system, for the solar home system, and for the lighting system. So on the basis of these requirements, there are different types of the capacity are classified. So
सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर विदाउट ईयरफोन आप करिए, लैपटॉप विदाउट ईयरफोन पढ़ाइए। हेलो, बार बार ये हो रहा है। एक मिनट में सेटिंग चेंज करके देखता हूँ। हेलो, अब सही है बेटा? तो सही है। या फिर इको टाइप का हो ही रहा है अभी? नहीं सर सही है अभी। अभी सही है? हाँ जी सर। चलो चलो, रहने दो रेयांश, छोड़ दो उसको। हाँ तो तुम उस पर क्लास कर रहे हो, ठीक है। ये ले जाओ अपना हेडफोन। ये कौन सा है यार? तुम तो एक एक करके निकालो, ये सही होगा। इस पे अभी भी कुछ का सवाल है। ये कौन सा था? सर हाँ सर आप सही आ रही है सर, इसकी जरूरत नहीं है। सही आ रही है आवाज? यस सर। देख लो, नहीं तो मैं फिर बाद में बोलोगे इको हो रहा है, तो मैं इसीलिए ये लेके इसको खोल कर चलो ठीक है। अगर सही आ रही है तो ठीक है, इसको ओपन कर दो, इसको सही से सीधा करके इसको रख दो। अगर प्रॉब्लम होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। सेकंड वन, ये क्या ऑफ ग्रिड सिस्टम फॉर द डीसी लोड। ये आपका ये आपका रेडी वगैरह जो लगाता है उसका ये दिखा रखा है कि अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में नॉलेज है तो जो स्ट्रीट वेंडर है वो भी इसको यूज कर सकता है। कैसे यूज करेगा? सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये आपको कल मैंने बताया था कि इट शुड बी देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। That is the photovoltaic system. This is the charge controller. This one is the battery, and this is the load. So ये मेन कंपोनेंट्स है। उसी तरह से इसको इंस्टॉल करेगा। जनरली क्या करना है, ये अपने जो रेडी जो यूज कर रहा है उस पर क्या करेगा, ये पैनल को इंस्टॉल करेगा, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर यहीं पे कहीं पे रख लेगा, और बैटरी तो सभी के पास रहता है। आप जब जाएंगे मार्केट में सब्जी वगैरह लेने के लिए तो आप देखेंगे क्या करता है कि एक जो सप्लायर होता है वो डेली का डेली उसको बैटरी आके देगा, और उसके बाद ऐसे वो नाइट में यूज करता है 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक, जितनी देर उसको सेल करना है तो उतनी देर तक वो और उस पे सेल करेगा उस लाइट में। उसके बाद है फिर वो अपना बैटरी ले आता है। तो ये स्ट्रीट राइडर जो है, ये स्ट्रीट वेंडर, ये मुंबई का सीन है। उसने क्या किया, ये एक सोलर पैनल इस पे ऐसा इंस्टॉल कर दिया और इस तरह से ये सिस्टम बना है। तो इसका ये शो करने का मोटिव क्या है कि जो इनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट है, जो इवनिंग में इनकी सेलिंग जो होती है, वो लाइटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व आउट हो जाएगा। कोई भी ऑन ग्रिड इसको सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है, ऑफ ग्रिड सिस्टम है, और इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है लाइटिंग की, ये 10 वाट या 15 वाट का एलईडी जला के अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन दिखा है। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ योर सिस्टम फॉर द रेसिडेंशियल सिस्टम। सपोज दैट यू हैव आपके घर हैं, आप अपने घर पे इसको चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। छत पे स्पेस है, रूफ पे, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। 2 किलोवाट 3 किलोवाट जितने भी आपकी बजट है उसके अनुसार आप इंस्टॉल कीजिए, और इससे आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और जो भी आपकी जो रूरल एरिया है जहाँ पे बिजली वगैरह नहीं जाती है, जहाँ पे ग्रिड सप्लाई नहीं है, वहाँ पे जनरली ऑफ ग्रिड सिस्टम इज मोर यूजफुल। वहाँ पे आप रात को पढ़ाई कर लिए या फिर कुछ काम करने के लिए, छोटे मोटे काम करने के लिए आप लाइटिंग की फैसिलिटी ले सकते हैं। और आप नंबर्स ऑफ चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। लाइटिंग कर सकते हैं, फैन चलाना है फैन यूज कर सकते हैं, आपको इरिगेशन के लिए अगर आपको वाटर चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम, जितना भी पंपिंग वगैरह जो लगते हैं सोलर वायर, सारे ऑफ ग्रिड सिस्टम। सिंपल इसमें भी कंसेप्ट है वही, ये आपका पैनल लगा हुआ है, पैनल चार्ज कंट्रोलर, इसमें एक बैटरी। एंड जैसा कि ये एसी लोड है तो क्या किया यहाँ से इसने इन्वर्टर को कनेक्ट कर रखा है, इन्वर्टर से एसी आउटपुट मिला और ये आपका सिस्टम रन होगा। तो इस तरह से हम लोग हाउस होल्ड में भी यूज करते हैं। रही बात इन्वर्टर की यहाँ पे क्यों जरूरत है, क्योंकि जनरली इन द आवर हाउस होल्ड वी आर यूजिंग एसी सिस्टम, नॉट यूजिंग डीसी सिस्टम। सो टू ड्राइव द, हाँ ये बोलो।
चलिए, तो फॉर ड्राइविंग फॉर रनिंग द एसी सिस्टम हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि डीसी पावर आउटपुट से हमारा एसी सिस्टम नहीं चलेगा, तो वहां पे इन्वर्टर रिक्वायर्ड है। अगर ये लोड आपका 100% डीसी है तो इस इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैंने आपको कल डिजाइन में बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 10% जो इन्वर्टर में सर्किट लॉस होता है, तो ये अगर आप इन्वर्टर लगा रहे हैं दैट मीन सर्टेन पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट लॉस इन द इन्वर्टर। ये क्या है आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में नंबर ऑफ इन्वर्टर यूज होते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप देखेंगे तो ह्यूज कैपेसिटी बैटरी बैंक होते हैं, और उसके अनुसार जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इन्वर्टर लगे होते हैं। तो उस इन्वर्टर के बाय उस इन्वर्टर जो होता है उसकी कैपेसिटी डिपेंड करती है कि कितनी कैपेसिटी है। और अभी सब आवाज सही है? हेलो, अभी आवाज सही है सब लोगों को? हाँ जी यस सर। सर, सही है। हाँ, यस सर, ठीक है। चलो ठीक है। तो अब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नंबर्स ऑफ इन्वर्टर लगे होते हैं, और ये नंबर्स ऑफ इन्वर्टर जो है इस हिसाब से आप देखेंगे इंडस्ट्री में इसी तरह से लगाया जाता है, ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। और ये इन्वर्टर क्या करते हैं, ये इन्वर्टर क्योंकि हमारा जितना भी इंडस्ट्री में लोड होता है, जनरली जो हैवी लोड होते हैं सभी मशीन्स वगैरह जो होते हैं किससे चलते हैं, एसी लोड पे होते हैं। तो एसी लोड पे हमें चलाने के लिए इसको क्या करते हैं, इस सोलर सिस्टम को यूज करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इससे बेटर है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम को अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज गो टू द ऑन ग्रिड सिस्टम। उसमें क्या है कि आपको इस इन्वर्टर की कॉस्टिंग बच जाएगी। ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं, नंबर्स ऑफ इन्वर्टर आपने लगा रखा है, ठीक है, ये बैटरी में ह्यूज कैपेसिटी जो लगा रखा है ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप इन्वर्टर आप सिंपली क्या करेंगे, ये जो पैनल है उससे आपका आएगा, यहाँ चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी नहीं भी रखेंगे तो आप इन्वर्टर लगाएंगे जो एसी इन्वर्टर होगा, वहां पे ना बैटरी की जरूरत है ना चार्ज कंट्रोल की, डायरेक्ट ये इन्वर्टर में आएगा। और इन्वर्टर क्या होगा, नेट मीटरिंग जो मीटर होगा उससे कनेक्ट होगा और डायरेक्ट ये सप्लाई करेगा ग्रिड को, और आपको जितनी पावर रिक्वायर्ड है वो आप ग्रिड से ले लो। तो उस केस में क्या होगा, ये जो आप इतने जो बैटरी बैंक लगाने के लिए जो कैपेसिटी इतने जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आपका सेव हो जाएगा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम इज बेटर in case of the industrial application. Off-grid system is only feasible in case of the rural area, जहाँ पे आपको बिजली नहीं आ रही है, करंट अवेलेबल नहीं है, वहां पे ही ऑफ ग्रिड सिस्टम जनरली सक्सेस होता है। ये क्या दिखा रखा है, ऑफ ग्रिड आपका पंपिंग सिस्टम है। सपोज दैट आपके पास लैंड है, 10 एकड़ 20 एकड़ लैंड है, उस पे से खेती होती है, उसमें सिंचाई करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट आइडिया है सोलर पंपिंग का। आप इसमें क्या कीजिए, समरसिबल पंप होता है आपके घर में, जो पंप वाटर जो सप्लाई होता है जो ग्राउंड से आपके छत पे जाता है, टैंक में इंस्टोर होता है, उसमें भी आप ये पंपिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंपिंग सिस्टम होता है। मॉर्निंग में सनलाइट आता है 9 बजे से आप चला दिए, 9 बजे से आपका सन पीक आवर आ गया, 2 घंटे के लिए आप चलाइए, आपका टैंक फुल हो जाएगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जिंग नहीं है। क्योंकि जितनी भी चीजें हम हैवी लोड यूज करते हैं उसमें ज्यादा कंजम्पशन होता है, हमारा पावर जो कंजम्पशन होता है वो ज्यादा होता है। आप देखेंगे घर में जो पंपिंग है, वाटर में आप वाटर जो आपका सप्लाई हो रहा है, जो आपका ग्राउंड से आपके छत पे जा रहा है, आप उसकी अगर मीटर को देखेंगे तो आपको बिजली की कंजम्पशन काफी है। आप देखेंगे उसका मीटर अगर रीडिंग करे तो कंजम्पशन ज्यादा आ रहा है, और ये हमें क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। आपने मीटर को कनेक्ट कर लिया, शर्त की उसमें क्या होना चाहिए, आपका क्लाउडी नहीं होना चाहिए, जो स्काई हो क्लियर होना चाहिए। जिस दिन बारिश होगी उस दिन प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जिस दिन बारिश होगी उस दिन प्रॉब्लम नहीं, ग्रिड सिस्टम से यूज कर लेंगे पावर को। तो लेकिन जितने दिन सपोज दैट अगर हमें आउट ऑफ 365 डेज हमें अगर 300 डे क्लियर स्काई मिल रहा है, तो 300 डे तो हम वो पावर जो ग्रिड से ले रहे थे वो सेव हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग पंपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज दैट आपकी आपकी खेत है, लैंड है, जहाँ पे खेती हो रही है, वहां पे पावर सप्लाई नहीं है, ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं आ रहा है, आप वहां पे आप इसको पैनल ये पंपिंग सिस्टम को लगा सकते हैं। आपने लगा दिया। जनरली क्या होता है, इरिगेशन जो हम लोग करते हैं डे में ही करते हैं, खेती जो भी खेती का जो भी काम होता है इन डे होता है, नाइट में नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा, जब आप खेती करने जाएंगे और जब आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, आपने क्या किया, सनलाइट ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने इसको ऑन कर दिया, आपका पानी हमसे आ रहा है, आप सिंचाई कर रहे हैं उससे, तो इजिली अवेलेबल, फ्री ऑफ कॉस्ट, बाय द नेचर, फॉर द नेचर ये चलेगा। कोई इसके पॉल्यूशन नहीं जनरेट कर रहा है, कोई भी इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट नहीं डाल रहा है, और 100% क्या है, प्योर एंड हाई क्वालिटी एनर्जी हमें अवेलेबल हो रहा है सोलर एनर्जी से, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द इरिगेशन पर्पज से।
तो ये पंपिंग का सिस्टम दिखा रखा है एप्लीकेशन में। एंड ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द डीसी लोड एंड डीसी कपलिंग। ये अभी आपने देखा था उसमें एसी लोड था, ये क्या है डीसी लोड है। तो डीसी लोड के लिए आपको पहले भी दिखा रखा है कि देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द स्टैंडअलोन सिस्टम, दैट इज द पीबी एरे, चार्ज कंट्रोलर, ठीक है, एंड क्या है आपका बैटरी बैंक, एंड उसके बाद लोड। लोड को आप सप्लाई दे दीजिए यहाँ से, ये चार्ज कंट्रोल से बैटरी भी कनेक्ट होगा एंड हमारा लोड भी कनेक्ट होगा। जब ये सन पीक आवर में होगा तो इसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंडीशन होगी अराउंड एसटीसी कंडीशन को ये फुलफिल करेगा। तो उस केस में क्या होगा, ये करंट जब ज्यादा देगा, हमें पावर ज्यादा देगा, तो जितनी भी लोड की रिक्वायरमेंट होगी वो लोड को जितनी रिक्वायर है उतना पावर ये चार्ज कंट्रोलर लोड को भेज देगा, और रिमेनिंग क्या कर देगा, इस बैटरी को चार्ज करने में यूज हो जाएगा। जो करंट आएगा वो बैटरी को चार्ज करने में। अब इसको जब डिजाइन करते हैं तो जितनी वोल्टेज का हमारा पैनल सिस्टम बना होगा, सपोज दैट योर पीवी एरे सिस्टम इज 24 वोल्ट, then the battery bank system should be 24 volt. Your charge controller also should be 24 volt. ठीक है, and your DC load should be also 24 volt. तभी जाके ये सारे कॉम्बिनेशन हो पाएंगे। तो जब वोल्टेज फिक्स हो गए तो ओनली कौन फ्लो कर रहा है, ओनली करंट जो है वो वेरी कर रहा है। जैसे जैसे इरेडिएशन सन इरेडिएशन बेटर होगी, वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जैसे जैसे क्या होगा, रेडिएशन कम होगा, वैसे वैसे क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड घटेगा। अब आप बोलेंगे कि क्या टेम्परेचर के साथ वोल्टेज नहीं वेरी करेगा? हाँ, वोल्टेज वेरी करेगा, बट वो जो वेरिएशन करेगा आपने उससे पहले ही ओवर साइज कर रखा है पैनल को। तो अप्रोक्सीमेटली जैसे अगर आपने इसको 24 वोल्ट का बनाया है तो आपको बताया था मैंने कि क्या क्या आता है, जो पैनल होता है वो 30 वोल्ट का होता है और इसको हम लोग 24 वोल्ट कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होगा, जो वोल्टेज डिक्रीज करेगा, वो ताकि कंपेंसेट हो। तो इस तरह से ऐसा हम लोग डीसी सिस्टम को होम अप्लायंसेस के लिए यूज करते हैं। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू यूज द सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। अगर आप फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो डीसी सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप डीसी सिस्टम को प्रेफरेंस दें, नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इन्वर्टर लगाएंगे और इस इन्वर्टर में क्या होगा, आपका लॉसेज होंगे। एंड जब ऑलरेडी हमारा क्या है, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम की एफिशिएंसी कम है और ऑलरेडी है, सो परफॉर्मेंस जो ये आउटपुट दे रहा है वो कम है, उसमें से भी अगर लॉसेज हो जाए तो फिर ये बेटर नहीं है, ये सिस्टम जो है वो फीचर नहीं होगा। तो ट्राई टू यूज डीसी सिस्टम। और नवीन अपना माइक ऑफ कर दो। हाँ बेटा, नवीन सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लो, जब क्वेश्चन कुछ पूछना होगा तब आप ऐसा ऑन कर लेना। समवन इज वेटिंग हियर, गौरव। नवीन माइक ऑफ कर दो, डिस्टर्ब कर रहा है। नवीन कुमार बेटा माइक ऑफ कर लो, जब क्वेश्चन पूछना है आप ऑन कर लेना। ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द एसी लोड। अब एसी लोड है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इन्वर्टर लगेंगे। अब ये बात, ये आपका पीवी एरे है, पीवी एरे से डायरेक्ट क्या आ रहा है, पीवी इन्वर्टर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, अगर आपने डायरेक्ट पीवी एरे से पीवी इन्वर्टर में दे दिया और आपके लोड है, लोड तो फिक्स होंगे, 1 किलोवाट 2 किलोवाट आपका घर का लोड होगा। अगर आपने ये डायरेक्ट इन्वर्टर यूज किया, ठीक है, ये लोड चलेगा। जब ये पीवी एरे आपके सप्लाई करेंगे, जितनी आप इसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, अगर इसको ओवर साइज आपने बना रखा है कि हमें ये 1 किलोवाट का लोड लगा रखा है और हमने जो पैनल लगा रखा है वो हमने 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का लगा रखा है, तो उस केस में तो ये कंटिन्यूअसली चलेगा। लेकिन अगर आपने अंडर साइज रखा है कि 1 किलोवाट का 1.5 किलोवाट रखा है, तो जब भी ये करंट कम देने लगेगा तब ये आपके 100% लोड को फुलफिल नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी बैंक लगाने ही पड़ेंगे। तो बैटरी बैंक इसमें होना चाहिए था, इसमें बैटरी बैंक नहीं दिखा रखा है। तो वो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका एलआई का ऑन ग्रिड सिस्टम हो गया। ऐसे अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे सर तो मैं, हाँ बताइए। सर, अगर चार्ज कंट्रोलर यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो इससे सब फूकने का भी तो डर रह सकता है कि सर लाइट में नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये इन्वर्टर बेटा, ये इन्वर्टर जो होता है ना, इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर आता है, आपको अलग से चार्ज कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं है। ओके सर। जो जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, एक बैटरी बैंक इसमें होना जरूरी है, क्योंकि बैटरी बैंक नहीं रहेगा तो दैट ये ज्यादा पावर दे रहा है और इसको 1 किलोवाट का ही लोड है, ये हमारा जो है ओवर साइज हमने कर रखा है, ये 1.5 किलोवाट दे रहा है। तो फिर ये पावर जाएगा कहाँ, जो 1/2 किलोवाट जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे ना स्टोरेज हो रहा है, वो वेस्ट हो जाएगा, समझिए। तो
ठीक है। तो इसीलिए या फिर इन्वर्टर उसको पास ही नहीं होने देगा। और इन्वर्टर आपने 1 किलोवाट का लगा रखा है तो 1 किलोवाट ही इधर आने देगा, जो हाफ किलोवाट है वो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी बैंक लगानी चाहिए। और बैटरी बैंक लगा के जो हाफ किलोवाट जो आपका बच रहा है वो सेव हो जाएगा, और उसको आप इन द नाइट जब आपका सनलाइट नहीं अवेलेबल है तो आप यूज कर लीजिए। तो बैटरी बैंक इस केस में होना जरूरी है। एसी लोड इन ओनली ऑन ग्रिड सिस्टम जब होगा तभी आपको बैटरी बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम बना रहे हैं फॉर द एसी लोड या डीसी लोड, बैटरी बैंक इज कंपल्सरी। ये आपको देखिए ऑफ ग्रिड आपका हाइब्रिड सिस्टम है। एसी लोड और एसी कपलिंग आप देख लीजिए कि इस तरह से हाइब्रिड कर रखा है। जैसे कि ये एसी पावर बस है, ये आप देख रहे हैं विंड टरबाइन है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका पंप है। तो ये दिखा रखा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लोड दिखा रखा है। ये इसमें देखिए ये बैटरी लगा हुआ है, ये आपका बैटरी इन्वर्टर है, ठीक है। इसी से आपका ये इन्वर्टर भी लगा हुआ है, ये एसी पावर है। ये नहीं, ये बेटा वो आपका हाइब्रिड सिस्टम ने डिफरेंट डिफरेंट लोड को दिखा रखा है। ये मैकेनिकल है, ये आपका फैन है, ये आपका बाद यूपीएस है, ये पंपिंग है। क्या क्या लोड आप यूज कर सकते हैं एसी में इससे। तो ये सारे लोड आप जब एसी में कन्वर्ट हो गया तो जितने भी चीजें हम घर में यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आप यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, मिनी ग्रिड, माइक्रो ग्रिड। ये जो आप ग्रिड बनाएंगे ऐसे में ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। तो ये मिनी ग्रिड सिस्टम या माइक्रो ग्रिड सिस्टम कहलाएगा, जो आप अपने घर के हाउस होल्ड के यूज के लिए आप इसको यूज करेंगे। और एसी लोड जितने भी हैं चीजें हैं, ये जो आपका एसी बस बार ये जो आ रहा है इसी से सारे कनेक्ट हो जाएंगे, ये जितने भी लोड होंगे सब। क्योंकि एसी में जब कन्वर्ट हो गया तो 220 वोल्ट जो हमारे घर में सप्लाई आ रहा है सभी में 220 वोल्ट होंगे, और पार्टिकुलर जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है एसी का वो मेंटेन कर रहा है तो सारे सिस्टम चलेंगे। डीसी में ना वेरिएशन होता है कि इसकी अलग वोल्टेज है, इसकी अलग पावर है, और इसमें क्या है एसी में है इसकी तो फिक्स है, तो जितनी होगी सबको आपने इसमें कनेक्ट कर रखा है, और इस तरह से आप एसी लोड को ड्राइव करेंगे। Off-grid system fundamental concept here. I already discussed about it. That there are three main components of the off-grid system. That is the solar photovoltaic system, charge controller, and the battery bank. This is the DC load. तो DC load आप इसमें लगाएंगे तो चार्ज कंट्रोल से कनेक्ट होगा। बैटरी इज आल्सो कनेक्टेड विद अ चार्ज कंट्रोलर, पैनल इज आल्सो कनेक्टेड विद अ चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर जब आप लेंगे तो उसमें सभी ये तीनों कनेक्टिंग पॉइंट बने होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सब पे आपको इंडिकेशन दिया जाता है कि कहाँ पे पैनल कनेक्ट होना है, कहाँ पे बैटरी कनेक्ट होना है, एंड कहाँ पे लोड कनेक्ट होना है। वर्क रेदर इन द रूरल एंड रिमोट एरिया देन इन द अर्बन एरिया। जनरली ये रूरल एरिया में यूज होता है क्योंकि अर्बन एरिया में क्या ऑलरेडी ग्रिड पावर एनफ अवेलेबल होता है। हाउएवर द वर्क्स इन नियरली एवरीवेयर में, ये जो है एवरीवेयर आप जहाँ चाहें लगा सकते हैं। मार्केट जनरली पीपल customer who do not have electricity supply and most of the system are a small one two model। जनरली गांव वगैरह में जो छोटे किसान वगैरह होते हैं उनके घर में लाइट वगैरह तो दो या तीन मॉडल लगा लेते हैं ताकि उनके घर की लाइटिंग वगैरह मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज होता रहे। और पूरे सिस्टम का और क्या एप्लीकेशन है, आप जब गांव घर में जाएंगे रूरल एरिया में जहाँ पे ये टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो टावर लगे होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं जनरेटर यूज करते हैं वो उसको पावर सप्लाई करने के लिए। तो वहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम आप यूज कर सकते हैं क्योंकि उनका एक पार्टिकुलर एरिया होता है जो ओपन स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, तो उसमें सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम को इंस्टॉल करके इसको हम यूज कर सकते हैं। जो डीजी सिस्टम है इट इज हार्मफुल फॉर अस, इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, और इसको जितना हम ऑब्सोलेट करें उतना ज्यादा है। आपको याद होगा जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा था तो एनजीटी ने बैन कर दिया था, जितने भी बड़े बड़े सोसाइटी है सभी जगह जनरेटर डीजल जनरेटर चलाना आपका अलाउ नहीं था उस समय। तो वो हार्मफुल है आपके लिए क्योंकि डीजल जो जल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैस है। ऑलरेडी कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग गैस इतना ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया एनवायरनमेंट में कि टेंपरेचर डे टू डे एनवायरनमेंट का इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए ये हार्मफुल है हमारे लिए। तो सोलर होम सिस्टम, क्लिनिकल, स्कूल, रूरल विजन, these are the application of the off-grid home system। स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है this is the one of the best way to use the solar photovoltaic system। ज्यादातर जितने भी आप देखेंगे सोसाइटी या आपके घर जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं या विलेज वगैरह, आप रूरल विलेज में भी देखेंगे सभी जगह स्ट्रीट लाइट यूज होते हैं। अप्रोक्सीमेटली क्या करते हो 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक जनरली यूज होता नहीं होता है। जब आप उसको चाहें तो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हैं एज ए इंजीनियर, सपोज दैट किसको आ रहा है तभी वो चलेगा। तो वहां पे आप तो ये सोलर फोटो
फोटोवोल्टिक सिस्टम यूज कर सकते हैं। होल डे क्या होगा, वो सनलाइट से चार्ज होगा बैटरी, और इन द नाइट 5 आवर का वो आपको बैकअप देगा। आप वेब चैनल यूज कर लीजिए, या नहीं भी और 5 आवर कंटिन्यूसन नहीं रन कराना है, उसको सेंसर बेस बनाइए। जैसे उसे महसूस होगी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लाइट ऑटोमेटिकली बर्निंग आउट हो जाए, जलने लगेगा, और आपका ऐसो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देगा। तो इसके लिए स्ट्रीट लाइट के लिए वन ऑफ द बेस्ट वे है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम को यूज कर सकते हैं लोग। स्मॉल पोर्टेबल एप्लीकेशन, जैसे आप छोटा मोटा एप्लीकेशन जो टॉर्च वगैरह हम लोग घर में यूज करते हैं, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बैटरी को डे में रिचार्ज कर दिए, इन द नाइट हम लोग उसको यूज कर लिए। जो सोलर लालटेन होता है उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द स्टडी। जो रूरल एरिया है जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, वहां पे हम सोलर लालटेन यूज कर सकते हैं कि उसको डे में रिचार्ज कर दिया, इन द इवनिंग दे दिया। रूरल में जिन जिन बच्चों को पढ़ाई करना है उस पे इसको बैठ के पढ़ाई कर लिए। तो ये सारी चीजें नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन हम इससे थ्रू बना सकते हैं। बिगर भी प्लांट बना सकते हैं आप, स्मॉलर भी प्लांट बना सकते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप बना सकते हैं। आज के डेट में सबसे मेजर जो इसमें एडवांटेज होने जा रहा है, जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आपको पता है कि जितने भी मैकेनिकल व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। जो हम डीजल पेट्रोल यूज कर रहे हैं वो सारे अब ऑब्सोलेट होने वाले हैं। अब क्या होगा, अब आपका सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए क्या हो, जैसे आप अभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, अभी चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, और ये चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर जो है वन ऑफ द बेस्ट वे है। सोलर से आप क्या करेंगे, सोलर को आपने इंस्टॉल कर दिया, आपने बैटरी चार्ज करके रखा है, गाड़ी आई आपके प्लेटफॉर्म पे लगी, आपने बैटरी को ट्रंक और उसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी जो है गाड़ी को व्हीकल को चार्ज कर दिया। या फिर आपने एक बैटरी चार्ज करके रखा है, सपोज दैट आपके पास मारुति है, आपने वेगनआर यूज कर रहे हैं, उसकी बैटरी को उठाया, आपने दूसरा बैटरी दे दिया, उसके बैटरी को लेके रख लिया, आपने उसको चार्ज कर दिया। तो ये सिस्टम अब होने जा रहा है। तो डे टू डे क्या होगा, तो जो अर्निंग सोर्सेज है उसमें भी हम सोलर के बारे में सोच सकते हैं। जो बिजनेस की आइडिया उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। अभी कम आप देखेंगे यूएसए वगैरह में ये चीजें बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये चीजें डेवलपिंग मोड में है। तो इसमें जो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। Off-grid system PV application in rural area, remote village electrification, irrigation pumpage ऑलरेडी बताया आपको, सोलर वाटर प्यूरिफायर, जैसे हमने कॉलेज में बना रखा है वैसे आप लोगों को वाटर प्यूरिफायर भी बना कर दे सकते हैं सोलर का, जिनके पास बिजली नहीं है। ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री, जो एटीएम्स होते हैं, जो एटीएम हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे रूरल एरिया में बिजली नहीं है, वहाँ पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाय द सोलर के थ्रू हम लोग एटीएम यूज कर सकते हैं। वो एटीएम होता है, कंप्यूटर कैसे चलता है, यूपीएस होता है, यूपीएस। हाँ हेलो हेलो बोलो। तो सर आपकी तरफ से आवाज ठीक नहीं आ रही है। मेरी तरफ से आवाज ठीक नहीं आ रही है, तभी से तो आवाज सही आ रही थी। हेलो, अब सही है? सही है सर। अब बेटा इससे ज्यादा बढ़िया सही है नहीं हो सर, सकता। सही है सर। सब दिक्कत है। तो जो कंप्यूटर सही है सर। जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है, यूपीएस होता है, और यूपीएस को क्या करते हैं, यूपीएस को हम लोग ग्रिड से पावर लेके उसको चार्ज करते हैं। तो जब यूपीएस है वो डीसी सिस्टम है, तो उसको तो इजी है, डीसी सिस्टम से डीसी हम सोलर फोटोवोल्टिक लगा दिया हमने, जितनी भी कैपेसिटी, जितने कंप्यूटर आपको चलाने हैं उस हिसाब से। और यूपीएस क्या किया, यूपीएस में जो बैटरी है वो सोलर फोटोवोल्टिक से चार्ज हो गया, और उस से हमने क्या किया, कंप्यूटर को चला लिया, एटीएम को चला लिया। अब एटीएम क्या है, लाइक अ कंप्यूटर, आपने एटीएम को चला लिया, एटीएम को यूज कर लिया। तो आपकी एटीएम के लिए यूज हो सकता है। जो जगह जगह जो रूरल एरिया है जहाँ पे एटीएम नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट नहीं होने की वजह से, आप वहाँ पे एटीएम इंस्टॉल कर सकते हैं, आप एटीएम को यूज कर सकते हैं। टेलीकॉम टावर में जो टावर आप देखते हैं जहाँ पे जनरेटर यूज करते हैं, वहाँ पे भी ये यूज हो सकता है, टेलीकॉम टावर है। बैंक इंडस्ट्री में जहाँ एवरीवेयर बैंक में आप जानते हैं कंप्यूटर यूज होता है। अगर आपको ग्रिड पावर नहीं है तो कंप्यूटर आप नहीं चला सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम लगा के जितने भी कंप्यूटर हैं हम उसको रन करा सकते हैं। अब जरा सा एज्यूम्शन करके सोचिए, जितनी इतनी हम लोग इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर की कंपनी है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर ये लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग टोटल का टोटल पावर जो है सोलर से अगर उसको कंपनसेट कर दे उसके पावर को रनिंग के लिए, तो कितना यानी कि एनर्जी का कंजम्पशन जो है वो सेव हो जाएगा। जो हम लोग ग्रिड से जो पावर ले रहे हैं, जो कोल पावर प्लांट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो टोटली का टोटल सोलर पे डिपेंडेंट होगा। हाँ, इमरजेंसी के लिए हम रखेंगे, जब हमारे पास क्लाउडी है या फिर फॉगी सीजन है तो उसके लिए हम ग्रिड पावर रखेंगे, उस समय हम ग्रिड से यूज कर लेंगे। तो ये सारे टेक्नोलॉजी। हाँ
सर कई स्टेशंस पे भी सोलर पैनल का पूरा पूरा स्टेशन बिल्डिंग के भी हाँ, पूरा अभी सोलर से आपको हो रहा, तो वो कौन सा सिस्टम यूज अभी होता है? ऑफ अभी जो ग्रिड या ऑन? अभी आप मोदी जी यहाँ रीवा में, मध्य प्रदेश में अभी 7 मेगावाट का एक सोलर प्लांट वो स्टार्ट कर रहे हैं। शायद इनोग्रेशन होने वाला था या हो गया, जिससे क्या वो ट्रेन को चलाने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के नाम से उन्होंने वो इनोवेट किया है। तो वो जो है आपका, वो जितने भी वो बना रहे सारे ऑन ग्रिड सिस्टम चल रहा है। ऑफ ग्रिड सिस्टम ह्यूज कैपेसिटी में नहीं होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम का कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट या 5 किलोवाट, उससे ज्यादा नहीं होता ऑफ ग्रिड सिस्टम। जितने भी हम मेगावाट में या गीगावाट में जाएंगे सारे क्या होंगे, ऑन ग्रिड सिस्टम होंगे, कभी भी ऑफ ग्रिड सिस्टम नहीं होगा। क्योंकि उसको अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम आप बनाएंगे तो उसको पावर उसको स्टोर करने के लिए बैटरी बैंक ह्यूज कैपेसिटी रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारे क्या है आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है। जो रेलवे को जो पावर मिल रहा है उसको चलाने के लिए वो डायरेक्ट जो ग्रिड से है वो कनेक्टेड है, और ग्रिड को क्या कर रहा है, वो पावर सप्लाई कर रहा है, और उससे आपका वो चल रहा है। तो उसकी कैसे आपने बोल दिया कि ग्रीन एनर्जी है, तो इसलिए बोला गया कि जितनी पावर वो कंजम्पशन कर रहा है उससे ज्यादा वो आपका 7 मेगावाट का जो सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट लगा हुआ है वो ज्यादा जनरेट करके दे रहा है। ठीक है। आप उसके बाद आप टेलीकॉम टावर में सोलर मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, रूरल एरिया में जहां पे लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए नहीं है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। विलेज स्ट्रीट लाइट, हाईवे लाइटिंग, आप ये देखिए ईस्टर्न पेरिफेरी जो बना है एवरीवेयर ये सोलर लाइटिंग ही लगा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ से वहां तक आप चले जाइए, जितने भी पूरा हाईवे पे सभी जगह सोलर लाइटिंग लगा हुआ है। एज वेल एज इन्होंने क्या किया, जो पार्किंग एरिया बनाया है वहां पे भी सोलर को इंस्टॉल करा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी जो है सोलर को ये इंस्टॉलेशन करके उसको जनरेट करें। पंप सेट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो पंपिंग हम लोग वाटर करते हैं इन द टैंक वगैरह, उसके लिए भी हम लोग सोलर को यूज कर सकते हैं। आपके सिस्टम पीवी एप्लीकेशन इन अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया है जो मेट्रो सिटी, उसमें सोलर वाटर प्योरीफायर एवरी घर में, आपसे सभी घर में देखेंगे वाटर प्योरीफायर लगा हुआ है, और पूरे डे ये कंटिन्यू चलता है। आपने एक गिलास पानी लिया वो चलना स्टार्ट कर देगा, तो कंटिन्यूसली वो यूज होता है। और ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है। 24 वोल्ट का एडेप्टर लगा होता है। आपने 24 वोल्ट का हमने जैसे बनाया था उसी एडेप्टर को हटा के हमने 24 वोल्ट का सेटअप बना दिया। 24 वोल्ट का बैटरी सेटअप हमने लगा दिया, 24 वोल्ट का चार्ज कंट्रोलर लगा दिया, 24 वोल्ट का हमने 80 वाट का पैनल लगा दिया था। 40-40 वाट के दो हमने पैनल लगाए थे 12-12 वोल्ट के, और हमारा आरओ जो है कंटिन्यूसली वो रनिंग कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पानी हम प्योर पानी है जो पी रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं, टेलीकॉम टावर में यूज कर सकते हैं, एंड रेसिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप अगर दिल्ली में जाए मेट्रो स्टेशन, मेट्रो से जा रहे हैं तो आप देखेंगे नंबर्स ऑफ जो रूफ है, जो हाउसेज है उसके रूफ पे जिनका अपना घर है सब पे लगा हुआ है सोलर पैनल। लेकिन दिल्ली एनसीआर में सबसे बेटर सिचुएशन क्या जानते हैं, आपके लिए बेनिफिट यह जो दिल्ली एनसीआर में रह रहा है उनके लिए 24 आवर बिजली ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम ज्यादा बेटर है। आपको ना बैटरी लगाने की टेंशन है, कुछ नहीं, आपने सिर्फ पैनल लाया, इन्वर्टर लाया, कनेक्ट किया, ग्रिड को दे दिया। अब सपोज दैट आपने 10 यूनिट पर दिन में कंप्लीट कंज्यूमशन किया, और आपका जो पैनल सिस्टम है वो 15 यूनिट है सो जनरेट करके दे दिया, तो 5 यूनिट फिर भी आपको बेनिफिट हो रहा है। वो 5 यूनिट आपका, अगर सपोज दैट आज 15 यूनिट हो गया, कल आपका जो हो गया जनरेशन 8 यूनिट हो गया, आपने 2 यूनिट ज्यादा ग्रिड से लिया, तो जो कल 15 यूनिट दिया था वो कंपनसेट हो जाएगा, आपका 2 यूनिट से माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सरप्लस दिखा जाए तो या तो गवर्नमेंट ही आपको पेमेंट करेगी, या फिर जीरो पेमेंट आपको देना पड़ेगा, या फिर मिनिमम कंज्यूमशन जितना आप करेंगे उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। और जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 2 से 3 साल में वो उसका वैल्यू निकल जाएगा। और आफ्टर 2 to 3 ईयर 25 जो रिमेनिंग 25 ईयर इसका होता है लाइफ, तो आपको 20 to 22 ईयर क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिल रहा है। तो इससे बेटर क्या, आज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके पॉकेट में सेव हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि आप इन्वायरमेंट को सेव कर रहे हैं, आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, आप अपने आने वाले जनरेशन को सेव कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और मेंटेनेंस क्या है इसका, कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है। अगर आपने 2 किलोवाट का लगाया है तो 4 पैनल आएंगे, आपको ज्यादा आने नहीं, 500 वाट के आप लगाएंगे, या फिर 250 के लगाया तो 8 पैनल आएंगे। 8 पैनल आए उसको कुछ करना नहीं है, संडे को छुट्टी है, गए ऊपर में पानी है सो पाइप से मार दिया, उसको वाइपर से खींच दिया, क्लीन हो गया। बस इतना ही करना है, नथिंग करना है, कुछ नहीं करना है।
ये क्या ऑपरेट सिस्टम फॉर द सोलर होम सिस्टम मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डीसी एप्लीकेशन एंड लाइट टीवी एंड रेडियो। ये देखिए ये आपका स्ट्रीट लाइट के लिए यूज कर रहा है, ये दिखा रखा है यहाँ पे कि ये स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। ये कहाँ है, तंजानिया में है, ये दिखा रखा है। ये जो है ये साउथ की एक लेडी है, इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या किया था, अपना एक सोलर स्टैंड एलोन सोलर फोटोवोल्टिक पावर पावर प्लांट ही एक सेटअप किया था, छोटा सा प्लांट सेटअप कर रखा था। और ये इनके रूरल एरिया में जो विलेज एरिया था वहां पे लाइट नहीं थी, तो ये क्या किया, इन्होंने नंबर्स ऑफ ये लालटेन सोलर लालटेन परचेज किया। और इन द डे ये क्या करती थी, चार्ज करती थी, और इन द इवनिंग लोग आते थे इनके पास और इनसे 5 रुपये या 10 रुपये जो भी इन्होंने चार्ज कर रखा था वो इनको पे करते थे और फिर ये लालटेन लेके जाते थे। तो ये जो क्रिएशन ऑयल वाला जो हम लोग लालटेन यूज करते हैं ये ऑब्सोलेट कर दिया और ये सोलर लालटेन यूज होना स्टार्ट हो गया। तो इसी एप्रिसिएशन के लेके इनको राष्ट्रपति तरफ से ये मिला था, इनको प्राइज दिया गया था इन लेडी को। रियांश देखो जरा कौन है। तो ये जो है आपका सोलर, इसको क्या बोलते हैं हम, सोलर लालटेन। ये बढ़िया आइडिया था, आपका बिजनेस भी चल रहा है एज वेल आप क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं। ये जो केरोसिन ऑयल इतना यूज कर रहे थे, सोचिए लॉट्स ऑफ केरोसिन एवरी घर में अगर ये लालटेन यूज हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो हार्मफुल भी होता था और कॉस्ट भी ज्यादा लगता था। और इसमें क्या है, कॉस्टिंग भी कम आ रही है एज वेल एज आप जो डेली जो एक्सपेंसेस है वो कम है, एज वेल एज क्या है आप जो है एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं। सोलर लैंप विद द इंडिविजुअल पीवी पैनल फॉर द चार्जिंग। आप इस तरह के पैनल, छोटे छोटे पैनल लगा के आप इसको है सो इस तरह से बना सकते हैं। ये पैनल आपने सपोज दैट इसमें 9 वाट या फिर 10 वाट का एलईडी लगा दिया और इस पैनल को लगा दिया। आप इसको चाहे तो 40 वाट का या 20 वाट का पैनल लगा के डे में आप इसको चार्ज कीजिए, फिर उसके बाद है सो नाइट में इसको यूज कर लीजिए। इसमें सिंपली क्या है, पैनल लगा हुआ है, इसमें छोटा सा बैटरी लगा हुआ है, चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, ये इसको पावर सप्लाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, जो यूज हो सकता है। ये देखिए ये जो रूरल एरिया है यहाँ पे, अब ये बेचारा इसके पास इतने पैसे नहीं है कि बहुत बड़ा प्लांट लगा सकता है, तो इसने क्या किया, एक पैनल लिया और इसको ऐसे यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, चार्ज कंट्रोल लगा दिया, बैटरी रख रखा है। नाइट में इसको लाइटिंग का जो प्रॉब्लम था, 1 या 2 बल्ब इससे जला के अपनी लाइटिंग की प्रॉब्लम को ये फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या है, ये सोलर माइक्रो ग्रिड सिस्टम बना हुआ है विलेज के लिए। consists of single solar panel module mounted on the roof connected wire। ये इसके बारे में, ये solar microgrid system consists of set of the solar photovoltaic panel of electricity generation, a battery pack of the charging and the storage of the electricity for the night। ये आपका सोलर सिस्टम बना हुआ है एक विलेज के लिए। यहाँ पे बैटरी बैंक बना रखा है और जितनी भी इनके इवनिंग में जो लाइटिंग के लिए जो छत्तीसगढ़ का है लाइटिंग का जितना भी रिक्वायरमेंट होता है वो इसी से फुलफिल हो जाता है। तो ये छोटे छोटे माइक्रो सिस्टम आप लगा सकते हैं। ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्लिनिकल स्कूल एंड हॉस्पिटल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये बैटरी के बारे में दिखा रखा है, कमीशनिंग हाई क्वालिटी बैटरी ऑफ द सोलर सिस्टम एट द वासो हॉस्पिटल तंजानिया। ये तंजानिया का ही है। तो आप इसको लाइटिंग के लिए, लो पावर मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने सोलर में एक रेफ्रिजरेटर भी बनाया जो सोलर से चल रहा है, तो आप रेफ्रिजरेशन के लिए, ये सब हाई कंजम्पशन डेटा है जो आपका ग्रिड से जो पावर लेता है। ये रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कंडीशनिंग होगा, यही सब ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो अब क्या है, एयर कंडीशनिंग हम लोग कब यूज करते हैं, इन द समर यूज करते हैं। तो उस जो जो हीट आ रहा है उसी हीट को आपने अपने हाउस होल्ड को कूल करने के लिए यूज कर लिया। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है कि जो चीजें आपको डैमेज कर रहा था उसी चीज को आपने यूटिलाइज कर लिया कूलिंग के लिए। तो एसी भी आप यूज कर सकते हैं घर में, रेफ्रिजरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका वैक्सीन कोल्ड चेन, जो वैक्सीन वगैरह होता है उसको कोल्ड में रखने के लिए आप उसके लिए ये रख सकते हैं। पीवी डीजल हाइब्रिड सिस्टम फॉर लार्ज हॉस्पिटल, अगर ज्यादा बड़ा हॉस्पिटल है तो आप उसमें हाइब्रिड सिस्टम भी लगा सकते हैं कि डीजल जो आपका डीजी है उसके साथ पीवी सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया। जब भी पीवी सिस्टम हमारा कम पावर देने लगेगा तो डीजल सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, वो उसको कंपनसेट कर देगा। तो इस तरह से चीजों को हम लोग, ये ऑफिस सिस्टम फॉर द रूरल बिजनेस, लो पावर ऑफिस इक्विपमेंट। आप देखिए ये जो एक होटल है उसमें टोटल का टोटल पावर सोलर सिस्टम से सप्लाई हो रहा है। लाइटिंग इन शॉप्स एंड बार्स, जो दुकान है जो बार्स होते हैं उसमें भी लाइटिंग के लिए वीडियो डिस्को फैंस एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो रहा है आपका सोलर सिस्टम से ही ये हो रहा है सारा। ये आप देखिए कहाँ का है, ये युगांडा का है। ये
अब ये देखिए जो मैं अभी एटीएम की बात कर रहा था, ये एटीएम है, आप यहाँ पे देखिए सोलर एटीएम कैन हेल्प द काउज ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय द ब्रिंगिंग बैंक एटीएम टू द प्लेस व्हिच डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी रूरल एरिया आप जाएंगे, हम आप भी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आप देखेंगे कई ऐसे विलेज जहाँ पे लाइटिंग नहीं है। अब उनको अगर एटीएम जाना है तो वो क्या करेंगे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लिए वो आते हैं, फिर वो एटीएम जाते हैं। तो हम लोग ये सोलर सिस्टम के थ्रू हम वहाँ उस रीजन में भी हम एटीएम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये किसी साउथ के किसी विलेज का है जहाँ पे की इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वहाँ पे ये वायर आया हुआ है, बट ऐसो वहाँ पे इसको सोलर से ही कंप्लीटली चलाया जा रहा है, ये सोलर से ही चल रहा है। वायर तो है बट लाइटिंग की सिचुएशन बहुत बुरी है, इसीलिए सोलर से ही इसको चलाया गया। इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर में ये देखिए पंपिंग के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या है कि यूज इन द ऑपरेटिंग पंप सेट ऑफ द इरिगेशन व्हिच कंज्यूम 20% ऑफ टोटल एनर्जी इन इंडिया। जितनी भी टोटल एनर्जी कंजम्पशन है इंडिया में, उसका 20% आपका इरिगेशन में यूज होता है। अगर हम इसको सोलर से यूज करें तो ये 20% क्या हो सकता है, हमारा सेव हो सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या सोलर का, अगर डीसी सिस्टम आप लगा रहे हैं तो जब ये पीवी सिस्टम जब सन पीक आवर में होगा तब तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा ही, तो जो वाटर का फ्लो होगा जब करंट ज्यादा देगा तो बहुत अच्छा आएगा। अगर सपोज दैट करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये कंप्लीटली बंद नहीं होगा। अगर आपका जैसे सन पीक आवर के बाद है या पहले है तो सनलाइट तो पड़ेगा, लेकिन उसका क्या होगा, रेडिएशन इंटेंसिटी कम होगी, तो करंट वो कम जनरेट करेगा, तो वाटर का फ्लो भी जो होगा उस हिसाब से डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूसली देता रहेगा पानी, ये बंद नहीं होगा। तो ये इसकी बेनिफिट है। तो 5 घंटे के लिए तो सन पीक आवर है, 5 घंटे आप अच्छे से यूज कीजिए, 5 घंटे के बाद जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, चलती रहने दो, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। आज के डेट में अगर आप डीजल वाली जो यूज कर रहे हैं पंपिंग सेट, उसकी अगर कॉस्ट आप घर में अगर आपके फादर या फिर आपके अंकल कोई भी अगर सिंचाई वगैरह कर रहे हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे अच्छे खासे कॉस्ट लेते हैं। मेरे ख्याल से 100 और 80 रुपीज से कम नहीं देते होंगे पर आवर के। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कोई भी पैसे नहीं देने हैं। बस एक बार जो आप पैनल सेटअप कर रहे हैं, इसमें बैटरी भी नहीं लगती, बैटरी लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप पैनल से कनेक्ट कीजिए, डीसी सिस्टम है, डायरेक्ट वो चलेगा। जब वो लाइट होगा आपने स्विच ऑन कर दिया, लाइट रहेगा, सनलाइट आएगा, आपका कंटिन्यूस देता रहेगा। तो जब भी हम इरिगेशन करते हैं, जब भी हम खेती करते हैं, तो उजाले में ही तो करते हैं, अंधेरा में तो करते नहीं है। तो ये क्या होगा, 20% जो कंजम्पशन है हमारा ग्रिड से पावर, जो कोल पावर प्लांट यूज करते हैं, ये ऑलरेडी क्या है, हम लोग इसको जो फुलफिल कर सकते हैं बाय द सोलर के थ्रू। ये आप देखिए ये क्या है, ये है आपका कि नेशनल पार्क वगैरह जहाँ पे लॉज वगैरह है, लार्ज पोटेंशियल मार्केट है, नॉइज जनरेटर रिप्ले, ये जो जनरेटर होता है यहाँ पे यूज करते हैं, ये जो बड़े बड़े जो पार्क वगैरह है उसमें। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टीमर है, इसको ऐसे सोलर पावर बनाया गया बर्लिन, ये जर्मनी का है। ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल पैनल यूज किया गया है, वो एल्युमिनियम वाली पैनल नहीं है, फ्लेक्सिबल है, इस पे इसको इंस्टॉल कर दिया और इसी के पावर से इसी स्टीमर को चलाया जा रहा है। आप ऐसो एक लोग दो लोग बैठ के बजाते जो उसको पुल स्टीमर में मूव करते घूमते हैं, वो ऐसा अपना इसमें एंजॉय करते हैं। सिमिलरली ये आपका उदयपुर राजस्थान में है, इसको देख के सोलर टैक्सी बोट लेक पिचोला उदयपुर इंडिया में है, ये राजस्थान में है, जहाँ पे ये लेक बना हुआ है। यहाँ पे भी लोग अपना एंजॉय करने के लिए आते हैं, सामने एक लोग दो लोग इसमें बैठते हैं और इसी सोलर से ही कंप्लीटली इसको चलाया जाता है। तो ये सारे टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये क्या है, दिस इज अ सोलर ट्रेनिंग इंस्टॉलिंग अ मॉड्यूल ऑफ 2 रेडियो सिस्टम इन द टंजानिया। ये रेडियो सिस्टम के लिए भी आप यूज कर रहे हैं इसको। तो रिपीटर स्टेशन, मोबाइल फोन नेटवर्क, 2 वे रेडियो, पुलिस मिलिट्री, डीसी ओनली। जो आपका रेडियो होता है, रेडियो जॉकी जो पुलिस वाले वगैरह यूज करते हैं, उसको आप चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप मोबाइल फोन जो है उसके लिए यूज कर सकते हैं, मोबाइल फोन के नेटवर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो है एप्लीकेशंस इसके, ये तो मैंने ऑलरेडी पहले आपको डिस्कस। स्ट्रीट लाइट, ये आपका स्ट्रीट लाइट के लिए यूज कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट में क्या है, ये लाइट लगा होता है अप्रोक्सीमेटली 22 या 25 वाट का आपका एलईडी लगा होता है। आप क्या करिए, यहाँ पे ऐसे सोलर पैनल लगेंगे, ठीक है, साउथ फेसिंग करके आप लगा दीजिए। यहाँ पे आपने चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल कर दिया, बैटरी कर दिया, इससे वायरिंग इनसाइड पाइप के थ्रू आ गया। और जब इवनिंग होगा, आप तो या चाहे तो स्विच ऑन कर दिए, या फिर सेंसर बेस बनाना चाहते हैं तो सेंसर बेस बना दिए। जैसे ही अंधेरा होगा ये लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगा। आप सेंसर बेस बनाना चाहते हैं, ये बना दीजिए, ये कोई यहाँ से गुजरेगा, नाइट में होल नाइट जलाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपका कोई नहीं यहाँ से जा रहा है सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए, आप 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट आप उसका टाइम शेड्यूल बना दिए 10 मिनट के लिए, और कोई नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये शट डाउन हो जाएगा, ये लाइट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही कोई किसी के आने की आहट होगी, ये सेंसर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको ऑन कर देगा। तो ये सब चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं। पब्लिक स्क्वायर रोड, प्राइवेट एयरपोर्ट, पार्किंग लॉट्स, एडवर्टाइज एक्सेट्रा, सारे चीजें में हम लोग यूज कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द एक्सटेंडिंग द ग्रिड। तो छोटे छोटे चीजें अगर हम लोग यूज करें, बड़ा सा एक ग्रिड लगाने से अच्छा है कि छोटे छोटे चीजों में, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग की बातें हुई, मोबाइल चार्जिंग हो गया, आपके घर में जो टीवी है वो भी आपका, जितने भी सिस्टम हम डे टू डे वी आर यूजिंग जिसमें एडेप्टर है, दिस ऑल सिस्टम्स आर डीसी सिस्टम। आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है जितने भी एलईडी आ रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर का मॉनिटर आ रहा है, ये सभी डीसी सिस्टम है। अब हम लोग एसी के से डीसी में जा रहे हैं, तो अगर डीसी हमारे पास सप्लाई ऑलरेडी मिल जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है, हमें एडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट हम उसको प्लग को लगाएंगे और हमारा सिस्टम रन कर जाएगा, चलने लगेगा। हम कंप्यूटर चलाना है, डायरेक्ट हम लगाएंगे उसको, वो हमारा जो मॉनिटर है वो चल जाएगा। अगर आपको यूपीएस चलाना है, उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो मदरबोर्ड में जो क्या कहते हैं यूपीएमसी क्या होता है, जिससे पावर सप्लाई होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज के, यूपीएस। हाँ यूपीएस, उसमें आप देखेंगे तो नहीं एसएमपीएस बोलते हैं उसको, यूपीएस में एसएमपीएस लगा होता है, जो पावर कंट्रोलिंग होता है, छोटा सा एक बॉक्स टाइप का होता है। तो उसमें देखेंगे तो क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वोल्ट के मदरबोर्ड में सप्लाई है, 5 वोल्ट का भी है, 12 वोल्ट का भी है, 18 वोल्ट का भी है, ठीक है 24। तो उस हिसाब से आपको उसको डिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके होगा। नहीं तो फिर आप क्या कीजिए, आपके पास यूपीएस है, यूपीएस को चार्ज कर लीजिए सोलर से, और फिर वो एसएमपीएस क्या करेगा, उससे जो पावर लेगा आपने उस हिसाब से, जैसे आपका चल रहा था उस हिसाब से चलेगा। तो इस तरह से आप चीजों को सोच सकते हैं कि आगे प्रोजेक्ट करने के लिए क्या हम प्रोजेक्ट करें। जब आप बीटेक फाइनल ईयर में अभी आप आए हैं, तो अभी जो प्रोजेक्ट करना है, तो सोलर पे नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। उसका ऑफ ग्रिड सिस्टम, बैकअप सिस्टम can be part of the solution when the grid is not working for the period of hour on a regular basis। सिंपल सी बात है, जो ग्रिड नहीं है उसके जगह पे यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट रेयर blackout extend UPS are probably a better solution। इमरजेंसी लाइटिंग एंड इन्वर्टर चार्जर, इमरजेंसी लाइटिंग के लिए अभी आपको लालटेन दिखाया था, उसके जगह पे आपका घर में अगर इमरजेंसी है तो उसको भी चार्ज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जहां भी आप इमरजेंसी सिस्टम देखेंगे, दीज आर द डीसी सिस्टम, उसमें बैटरी है, इसका मतलब वो डीसी सिस्टम है, क्या कर रहा है, डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ का टोटल सिस्टम जो है वो जस्ट उल्टा है। हम लोग को क्या होना चाहिए था, जो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को अगर छोटे काम करने हैं, लो कैपेसिटी का काम करना है, तो हम लोग हैवी कैपेसिटी से उस पावर को ले रहे हैं। सपोज दैट आपको एक मोबाइल चार्ज करना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे घर में जो जितने भी आप ट्रांसफार्मर देखेंगे, वहां पर जो सप्लाई हो रहा है 11,000 वाट का आता है। फिर 11,000 को क्या करता है, उसको फिर ट्रांसफार्मर में लगाते हैं, स्टेप अप से स्टेप डाउन करते हैं, उसको डाउन करके, डाउन कैसे होता है, उसमें कॉइल लगे होते हैं, कॉइल लगा के उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, और छोटे पार्ट में हमारे घर में आता है। और फिर घर में जब हमारे 220 से 230 वोल्ट का आ रहा है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, नंबर्स ऑफ एडाप्टर लगाते हैं, फिर मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर टीवी चलाते हैं, और एक्सेट्रा जितने भी कंज्यूमर शुरू करते हैं। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम, जो हम एक हाथी को बोल रहे हैं कि बेटा एक गिलास पानी ला के दो, तो हम क्यों ना एक छोटा सा सिस्टम बनाए जिसकी कैपेसिटी एक ग्लास ऑफ वाटर पानी लाने की है, वही वो ग्लास ऑफ वाटर पानी ला के दे। हाथी को अगर हैवी लोड कैरी करने की कैपेसिटी है, तो हम हैवी लोड के लिए यूज करें। तो हमारे यहाँ टोटल सिस्टम ही उल्टा है। हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूज कैपेसिटी, जो हैवी कैपेसिटी है, उससे हम ऐसे छोटे छोटे चीजों को काम कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो जो छोटे छोटे जो चीजें हैं, उसको छोटे छोटे पावर में कन्वर्ट कर दो, छोटे छोटे जो पावर सप्लाई करने वाले उससे यूज कर लो, ठीक है। जो हैवी लोड है, इंडस्ट्री वगैरह जो चल रही है, वहां जाने दो, ग्रिड पावर जाएगा। हमारे हाउस होल्ड की जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारा सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम पूरा कर दे, ठीक है। इसके साथ बस वही डिसएडवांटेज है सोलर के साथ, कि बैकअप सिस्टम नहीं है। बैकअप सिस्टम के लिए आपको बैटरी बैंक लगाने पड़ेंगे, सनलाइट जब नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो आपको एक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको बैकअप सिस्टम लगाने पड़ेंगे, बैटरी बैंक लगाने पड़ेंगे। और इसके साथ पीवी के साथ क्या क्या आपका हाइब्रिड सिस्टम हो सकता है, जो डीजी है, जनरेटर है, फोटोवोल्टेक के साथ आप इसको बाइंड अप कर सकते हैं, हाइब्रिड बना सकते हैं। पीवी के साथ विंड टरबाइन जो होता है उसको आप बना सकते हैं। पीवी के साथ हाइड्रो को आप ये हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं। और पीवी के साथ विंड एंड डीजल दोनों को आप हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं। और पीवी के साथ डीजल, विंड एंड हाइड्रो तीनों जो आप चारों को जो आप कंबाइन कर रहे हैं, तो भी आप हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं।
ये देखिए ऑफ ग्रिड सिस्टम, मिनी ग्रिड सिस्टम, ये क्या है आपका, ये आपका है मिनी ग्रिड सिस्टम। ये है मोनगोलिन विलेज इंडियन हॉस्पिटल फोटो है ये कोई विलेज है वहां का ये हॉस्पिटल है, और टोटल पावर जो सप्लाई होता है इस हॉस्पिटल का ये सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम से ही होता है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि जो रांची है वहां पे जो हाई कोर्ट है उसकी टोटल पावर जो कंजम्पशन होता है वो सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम से ही फुलफिल होता है। उसके जो रूफ है उसके छत पे वो फोटोवोल्टेक सिस्टम लगा हुआ है, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है डे में जो भी यूज होते हैं, ठीक है, वो सारे का सारा उसी से यूज होता है डे नाइट सभी के लिए। क्योंकि वहां तक क्या है वो थोड़ा वो पहाड़ी एरिया वहां पे शायद ग्रिड नहीं जा रखा है, तो इसीलिए वहां पे है सो ये सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम को यूज किया। इस अदर पावर सोर्स डीजल विंड लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ द बिल्डिंग एंड विलेज, तो ये सारे एप्लीकेशंस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये आपको दिखा रखा है कि स्मॉल पोर्टेबल अप्लायंसेस बनाने के लिए ये जो है आपका सोलर लालटेन्स, ये उसके बाद पीको सोलर, ये इस तरह का ये पीको सोलर बना हुआ है, ठीक है। 5 वाट का पीको सोलर सिस्टम विद एलईडी लैंप, एलईडी लैंप है, और ये आपका पीको सिस्टम पावर सप्लाई फॉर द लैपटॉप, लैपटॉप को वो चलाना। लैपटॉप हमारा क्या है, डीसी सिस्टम है, लैपटॉप में क्या है, बैटरी है, और वो भी क्या है, डीसी सिस्टम, आप सोलर से इजीली उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं जो डे टू डे हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट फिर से वही आ गया, ऑफ ग्रिड सिस्टम, फोटोवोल्टिक सिस्टम, मस्ट सिस्टम आर स्मॉल 1-2 मॉड्यूल, रूरल रिमोट रेदर वर्क ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मार्केट जनरली कस्टमर हु डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। ये पहले भी स्लाइड्स आया था, ये पहले भी हमने डिस्कस कर रखा है कि मेन कंपोनेंट क्या है, मॉड्यूल, चार्ज कंट्रोलर, इन्वर्टर, यदि आपका एसी लोड है घर में तो इन्वर्टर, चार्जर, बैटरी एंड द लोड। ये आपका, ये भी हमने पहले डिस्कस किया, चार्ज कंट्रोलर है। ये चार्ज कंट्रोलर कैसा होता है, ये पैनल का पॉइंट है, ये आपका बैटरी का पॉइंट है, ये आपका लोड का पॉइंट है। सभी में प्लस माइनस, जब भी डीसी सिस्टम होता है प्लस माइनस इंडिकेशन दे रखा होगा। ये आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, पर आपको बता रखा है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये क्या करता है, मोर देन 20 to 30% आपका पीडब्ल्यूएम जो चार्ज कंट्रोलर है उससे ज्यादा ये पावर देता है एनर्जी यील्ड करके। ये आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम इन्वर्टर, ये इन्वर्टर है जो क्या करेगा, डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा। ये ऐसा करके कोई कंपनी है जो बनाती है, उसका 500 वाट इन्वर्टर फ्रॉम स्टेसा डिजाइन फॉर यूज इन ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम। मोस्ट इन्वर्टर आर नॉट डिजाइन फॉर द यूज इन ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए इन्वर्टर है जो क्या करेगा, अभी आपने देखा था यहाँ पे ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर सिस्टम है, यहाँ जो ये इन्वर्टर है ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड अलग आता है, ऑफ ग्रिड अलग आता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, जब तक ये ग्रिड से सप्लाई इसमें नहीं आएगा तब तक ये इन्वर्टर आपका काम नहीं करेगा। जो हमारे घर में जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम है। आपको याद होगा अगर आप प्लग निकाल दे आपके घर के इन्वर्टर का तो आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। क्यों, अगर आपके ग्रिड से पावर जा रहा है फिर भी वो प्लग लगा होना चाहिए, क्योंकि जो उसका न्यूट्रल जो आता है वो उसको सेंस कराता है, तभी जाके वो काम करेगा। अगर आपने प्लग निकाल दिया तो भी वो काम नहीं करेगा और शट डाउन हो जाएगा। तो ग्रिड सप्लाई उसमें होना चाहिए, तो वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर कहलाता है। यहाँ ऑफ ग्रिड में क्या है, आपको कोई भी प्लग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये इन्वर्टर काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ये है आपका रेंज ऑफ द बैटरी फॉर द स्टैंडअलोन पीवी सिस्टम। लेड एसिड बैटरी, व्हाट टाइप्स ऑफ बैटरी आर अवेलेबल, लोकली मैन्युफैक्चर्ड, इंपोर्टेड, ठीक है। एटोमेटिक बैटरी आर नॉट रिकमेंडेड बट आर यूज्ड इन सोलर होम सिस्टम वेयर दे आर द ओनली ऑप्शन 2 ईयर मैक्सिमम लाइफ इफ द प्रॉपर्ली साइज। ये आपका है स्टैंडअलोन, ये सीटीएम बैटरी नहीं है, ये अलग से इन्होंने डिजाइन कर रखा है, वो सारे बैटरी है। तो डिफरेंट टाइप्स के लेड एसिड बैटरी है, उसके बाद आपका एटोमेटिक बैटरी है। तो ये सब आपका तंजानिया का ही है ये फोटो। प्रॉपर्टी ऑफ द बैटरी फॉर द पीवी ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब ये बैटरी के बारे में बता रहा है कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए डिफरेंट तरह के बैटरी, मॉडिफाई एसएलआई है, जेल सेल बैटरी है, मैं उसके बाद है मेंटेनेंस फ्री डीप साइकिल बैटरी, फूडेड डीप साइकिल। तो ये सारी चीजें इसमें दिखा रखा है कि क्या क्या है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन थिक प्लेट देन एसएलआई। आप देखेंगे बैटरी में प्लेट्स लगे होते हैं, नंबर्स ऑफ प्लेट्स सॉकेट्स आपके बने होते हैं, और उसमें लिक्विड डला होता है जो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है प्लेट्स, और उसके बीच में लिक्विड होता है जो चार्ज को सेपरेट आउट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफाई एसएलआई। इसमें क्या, मॉडरेट एंड लो वाटर लॉस
लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, इसकी डिस्चार्ज रेट कम होगी, वाटर लॉस जो लिक्विड लेवल जो होता है वो कम होगा, यूनिट ऑफ वोल्टेज कितना होगा 12 वोल्ट होगा, एंड कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होगी 60 से 260 एएच तक की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा बड़ा आपको नहीं होगा, ये इतना एएच तक चलता है, ठीक है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट मंथली अपने आप अगर आप कुछ यूज करें या ना करें ये 2 से 4% सेल्फ डिस्चार्ज होता है, और डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज साइकिल जो होता है 20% के से 20%, अगर आपका 1000 साइकिल लाइफ है तो, अगर 40%, अगर 500 साइकिल लाइफ हो तो मेंटेनेंस पीरियड 3 मंथ अप्रोक्सीमेटली होता है। अगर आप सेल मेंटेनेंस ये देखें, सेल टाइप देखेंगे तो मेंटेनेंस फ्री होता है, नो मेंटेनेंस 12 वोल्ट का होगा, और ये जनरली क्या होता है आपका 10 से 130 एच कैपेसिटी का होता है, मतलब इससे लो कैपेसिटी का होगा, ज्यादा कैपेसिटी का तो वो नहीं होगा। इसकी जो सेल्फ डिस्चार्ज रेट होती है 3 to 4, इससे ज्यादा है, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होती है 30% अगर 800 साइकिल है, एंड 50% अगर 300 साइकिल है, और मेंटेनेंस फ्री जीरो, नथिंग, कोई भी मेंटेनेंस पीरियड नहीं होता है इसमें, ठीक है। मेंटेनेंस फ्री डीप साइकिल। जेल इलेक्ट्रोड टेबलर टाइप बैटरी है, ये कितना वोल्ट का होगा, ये सब तो 12 ये 2 से 6 वोल्ट का होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि छोटे छोटे बैटरी यूज होते हैं, यही बैटरी ज्यादातर यूज होता है, जो C10 बैटरी की बात कर रहे हैं, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी 200 से 12000 एएच होती है, और इसकी सेल्फ डिस्चार्ज रेट लेस देन 3% होता है। उसके बाद डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 30% अगर 3000 साइकिल है, एंड 80% इफ मोर देन 1000। तो इस तरह से ये बैटरी का क्लासिफिकेशन है कि क्या क्या। बैटरी बॉक्स और बैटरी बैंक ये पहले भी हमने दिखा रखा है आपको, ये मेन कंपोनेंट्स है। ये ऑफ ग्रिड फोटोवोल्टेक सिस्टम डीसी एंड एसी, डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए ये देखिए इन्वर्टर लगा हुआ है, डीसी पावर यहाँ से मिलेगा, एसी लोड देगा। अगर डीसी लोड है तो डायरेक्ट चार्ज कंट्रोल से कनेक्ट होगा, यहीं से आपको इसको पावर आप सप्लाई कर सकते हैं। ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर कोस्टा रिका में है ये, ठीक है, वहां का ये दिखा रखा है। ये ऑफ ग्रिड फोटोवोल्टेक पीवी डीजल हाइब्रिड सिस्टम, जो हाइब्रिड सिस्टम की अभी बात कर रहे हैं, ये आपका फोटोवोल्टेक एंड डीजी हाइब्रिड सिस्टम है। ये आपका फोटोवोल्टेक सिस्टम है, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैंक। अब ये क्या है, ये आपका जनरेटर है। जनरेटर क्या करेगा, आपका एसी सप्लाई देगा, एसी आउटपुट देगा, तो एसी आउटपुट दे रहा है। अब इसको क्या किया है, ये इन्वर्टर चार्जर है, ठीक है। यहाँ से ये डीसी जो पावर आ रहा था उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया, ये ऑलरेडी एसी पावर से कनेक्ट है, ठीक है। तो आपका जो एसी हैवी लोड है वो क्या करेगा, यहाँ से ये अगर एसी ज्यादा जनरेट कर रहा है, इधर एसी ये आउटपुट दे रहा है, तो ये एसी आएगा इसके साथ तो कपल हो सकता है। कब कपल होगा, जब इसकी फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो जनरेटर जो जनरेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ होगा, तो कपल होके यहाँ पे हैवी लोड के ये सप्लाई दे देगा। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, जो इन्वर्टर ये जो एसी में कन्वर्ट कर रहा है और जनरेटर जो एसी में दे रहा है, फिर वो मैच नहीं करेगा, तो फिर आप उसको कपल नहीं कर सकते। तो कैसे होगा, तो जो हम इन्वर्टर लेंगे वो जनरेटर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार लेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है एसी आउटपुट का, वो कितना है, उसी के अनुसार हम इन्वर्टर डिमांड करेंगे, और इन्वर्टर हमारा कन्वर्ट करके यह हैवी लोड को ड्राइव करने में यूज हो जाएगा। ये आपका ऑफ ग्रिड फोटोवोल्टेक बैकअप सिस्टम। बैकअप के लिए सिंपल सा बात है, बैटरी बैकअप है, ठीक है। द ग्रिड है लोड सप्लाई व्हेन द ग्रिड इज ऑन। अब है सो आपका ग्रिड से कनेक्टेड है, लोड सप्लाई होगा कब, जब ग्रिड ऑन है। जब ग्रिड ऑफ होगा तो लोड में सप्लाई नहीं होगा। जब लोड में ये सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ से जो ये आउटपुट जा रहा था ग्रिड में ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये बैटरी बैंक है, यहाँ से जो एसी लोड निकल रहा है आपके हाउस होल्ड में ये सप्लाई होता रहेगा। जो मैं बता रहा था कि ऑन ग्रिड सिस्टम में हम लोग बैटरी बैंक पावर बैकअप के लिए नहीं यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब ग्रिड से पावर जाती है तो हम लोग के घर में जो लाइट आना है वो बंद हो जाता है। लेकिन यदि आपने बैटरी बैंक यूज कर रखा है तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने बैटरी बैंक यूज कर रखा तो उसके इसमें क्या होगा, सर्टेन पावर इसमें स्टोर होता रहेगा, और जब ये ग्रिड से पावर जाएगा तो इन्वर्टर क्या करता है, ये ऑटो कट हो जाता है। ऑटो कट हो जाएगा, इधर का जो चीजें है ये आपका यहाँ से कट हो गया, इधर नहीं जाएगा, और यहाँ से आपका एसी लोड जो घर का है उसको कंटिन्यूस सप्लाई देता रहेगा। ये आपका ऑफ ग्रिड फोटोवोल्टेक मिनी ग्रिड एसी कपल सिस्टम, ठीक है। ये आपका फोटोवोल्टेक सिस्टम है। फोटोवोल्टेक ये इन्वर्टर लगा हुआ, ग्रिड टाई इन्वर्टर है। ग्रिड टाई इन्वर्टर जो ग्रिड से जो है
टाई हो सकता है। तो ये ग्रिड टाई जो इन्वर्टर आता है वो ग्रिड का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो आउटपुट मिलता है इससे जो घर के लिए, उसी के अनुसार है सो ये डिजाइन होता है। जितना ये ग्रिड से पावर फ्रीक्वेंसी होगा उससे मैच करेगा, इसीलिए इसको ग्रिड टाई इन्वर्टर बोलते हैं। ये जनरेटर है, जनरेटर इसके साथ कपल हो गया, ग्रिड के साथ ग्रिड के जो आउटपुट होंगे उसी का जनरेटर का आउटपुट होगा। और इस तरह से ये जो इन्वर्टर है आपका चार्ज सुटेबल फॉर द एसी कपलिंग कर दिया, और यहाँ पे एसी मिनी ग्रिड आपने लगा लिया, जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको। तो इस तरह से हाइब्रिड सिस्टम डिजाइन किया जाता है। हेलो हेलो, हाँ बताइए, मैं सेशन ले रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चों है वो ऑनलाइन है। बाइक है मेरे पास। हाँ तो ले लीजिए, आ जाइए, चाबी दे देते हैं, जाके ले आइए, कोई इशू नहीं। ठीक, वही बेसमेंट में होगी। हम्म, छठा 609 टावर 3। ठीक। तो ये स्मॉल टू मीडियम विंड टरबाइन, आप वेरिएबल स्पीड एंड डीसी आउटपुट, ये सारे आप इसके साथ चाहें तो कोई भी आप सिस्टम को कपल कर सकते हैं। आप विंड को भी कर सकते हैं, जनरेटर को भी कर सकते हैं, ये डीजल जनरेटर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसके साथ आप कपल करके आप हाइब्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। बशर्ते क्या, कपलिंग के समय ये होना चाहिए कि जो इन्वर्टर जो आउटपुट देगा डीसी से एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी जो जनरेटर की है, जो विंड टरबाइन की है, जो एसी आउटपुट दे रहा है, उससे मैच करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट फॉर द पीवी सिस्टम, आप ये देखिए, ओरिएंटेशन इवेंचुअली साउथ डाइवर्जन 50 डिग्री टू ईस्ट और वेस्ट इज नॉट, ये बकवास इकोनॉमिकल। ये आपका इकोनॉमिक एंड द मार्केट वर्क नियरली एवरीवेयर, यूनिक सेल पॉइंट मॉड्यूल स्मॉल टू लार्ज सिस्टम पॉसिबल, टेक्नोलॉजी इज मेचर एंड रिलेबल इफ करेक्टली डिजाइन एंड इंस्टॉल पॉसिबल वेयर, ये आप कर लेना, इसमें कुछ है नहीं। इकोनॉमिकली मार्केट क्या है क्या नहीं है, सो मार्केट तो इसकी है। ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जो हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ये है आपका पीबीजीस, ये है हैंकिन एक्सेल फ्री बुक, उसके बाद पीबी सोल है, पीबी सिस्ट है, एंड होमर सिमुलेशन ऑफ द लॉ। जनरली इन द इंडस्ट्री ये दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, पीबी सोल एंड पीबी सिस्ट यूज होते हैं। तो मैं आपको जो ट्रेनिंग में जो बच्चे हैं उनको ये पीबी सिस्ट पे प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो पीबी सिस्ट आप सॉफ्टवेयर है वो है। ये जो आपसे हैंकिंग एक्सेल दे रहे हैं, ये एक प्रकार का एक्सेल सीट टाइप का है, जिसमें कि आपकी रिक्वायरमेंट है सब फुलफिल करेंगे, और वो सीट बनी हुई है, आपको कैलकुलेशन करके देगा। तो जनरली ये पीबी सोल की बेनिफिट क्या है कि जैसे आपके घर में, आपके छत पे सर्टेन एरिया है, आपने उस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, तो ये सारे कैलकुलेशन करके बता देंगे कि कितना किलोवाट का आप उसमें सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम लगा सकते हैं, कितना उसका वो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज कैलकुलेशन ये करके, शेडिंग होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारा चीज वो निकाल लेता है उस लोकेशन को लेके। पीबी सिस्ट क्या है कि ये आपको, जैसे आपने अपने घर का लोड डाल दिया कि हमारे घर में इतने टीवी हैं, इतने रेफ्रिजरेटर है, इतने लाइट है, ये सारे हम यूज कर रहे हैं, सारे लोड आपने डाल दिए, उसके अनुसार ये सिस्टम डिजाइन करके दे देगा कि आपको कम से कम इतना पैनल लगाने हैं, इतने बैटरी लगाने हैं। ठीक है, तभी जाके ये सिस्टम जो है टोटल फुलफिल करेगा। तो ये पीबी सिस्टम, जनरली पीबी सिस्टम ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एरिया क्या है, हर इंसान को पता है कि हमारा एरिया इतना है, उसमें कितना लगना है, सिंपली कैलकुलेशन है। आप जानते ही हैं 1 किलोवाट के लिए 10 by 10 एरिया रिक्वायर है, उस हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पीवी सिस्टम तो वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो मैं आपको जो फ्री ट्रायल वर्जन है उसी में प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि हमने परचेज कर नहीं रखा है। इसके आपका जो होता है सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए 50,000 ऐसा चार्जेज है, तो मैंने परचेज नहीं किया है, इंडस्ट्री में लोग परचेज करके इसको यूज करते हैं। तो ये था आज का आपका सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको 4 स्लाइड है उसको मैं दिखाता हूँ कि जो हाइब्रिड सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, फिर ऐसा हम इस सेशन को ऑफ करेंगे। ये स्लाइड्स प्रोवाइड करा दीजिएगा।
क्या करोगे स्लाइड लेके? वीडियो तो दे ही रहा हो तुम्हें रिवीजन के लिए, वीडियो सारे डाल रहा हूँ ना तुम्हारे ग्रुप में। ये स्लाइड्स लेके माथा खराब हो जाएगा। 97 एक स्लाइड एक में है, कितने स्लाइड्स तुम देखोगे? सारे जो एक्सप्लेनेशन है वीडियो में हमने डाल ही रखा है। स्लाइड्स अगर डाउनलोड करना है तो पीपीटी डालो उसमें, गूगल में सारे मिल जाएंगे जो टॉपिक पे डालोगे। ये है आपके हाइब्रिड सोलर पावर सिस्टम। इसमें देखिए ये सोलर पीवी सिस्टम है, ये आपका जनरेटर है जो आपने डीजी सेट यूज कर रखे हैं, ठीक है। हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर, ये आपका हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। इसी से क्या है आपका फोटोवोल्टेक सिस्टम भी कनेक्ट है। हाँ जी पुरी साहब, हाँ हाँ, छठा फ्लोर है ना 609। तो ये आपका सोलर इन्वर्टर यहाँ पे कनेक्टेड है। सोलर इन्वर्टर ये आपका इसी से जनरेटर कनेक्टेड है जो आप ये ग्रिड, ये देखिए ग्रिड पावर भी आ रहा है और डीजल भी है। डीजल डीजी सेट को भी इसी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। रांस राब्या इधर आना बेटा। हाँ। ये आपका बैटरी चार्ज थ्रू द एमपीपीटी चार्ज प्लस मेन लोड सप्लाई थ्रू द ग्रिड लोड। तो ये आपका बैटरी है सिस्टम है। अब यहाँ पे एसी लोड है, ये आपका नंबर्स ऑफ लोडेज है जो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए जब ये ग्रिड से पावर आ रहा होगा तो ये डीजी डीजी सेट आप देखिए डिस्कस, यहाँ पे देख गेट खोल दे। यहाँ पे हेलमेट में चाबी होगा गाड़ी का, पहले गेट खोल। आया ये चाबी दे, आज गेट खोल दो ना, अंकल समझेंगे कैसे, चाबी दिखाएंगे ना कौन कौन सा चाबी कहाँ यूज करना उनको पता होगा तो। हाँ ये जो है ना ये तो फ्यूल टैंक का है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे ही ले जाइए आप, ऐसे निकाल लीजिएगा फ्यूल टैंक में लगा दीजिएगा, ठीक है। एंड ये है आपका मेन उसका, ठीक है। 82 नंबर जो पार्किंग है ना, लिफ्ट से निकलते हैं टावर 3 का, नीचे में बेसमेंट में रेड कलर की जो है पल्सर वही है। कोई नहीं। तो हम अभी अब देखिए ये जो कनेक्शन अभी क्या है, ग्रिड से ये कनेक्टेड है। अब जैसे ही हम इसको ग्रिड से अगर पावर आना बंद हो जाएगा तब क्या होगा, ये जो आप बार देख रहे हैं ये बार इसको पुश कर देगा, इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, इसको कर देगा। ये ऑटोमेटिक इंटरलॉक सिस्टम बना होता है, इसको कनेक्ट कर देगा और ये आपका जो सप्लाई है कंटिन्यूसली। तो ये हाइब्रिड सिस्टम इस तरह से होता है और जितने भी लोड है इसमें चलते रहता है। अब जरा सा देखिए आपको अभी दिखेगा, ये अभी देखिए अभी जो ये सप्लाई आ रहा है वो ग्रिड से आ रहा है, अभी ग्रिड से आ रहा है और सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम से आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा ग्रिड जो है वो लोड को सप्लाई कर रहा है। अब क्या है, जितने भी पावर ये इससे आ रहे हैं या जो ग्रिड से जो पावर आ रहा है वो दोनों मिलकर बैटरी को चार्ज कर रहा है। देखिए यहाँ पे सर्टेन पार्ट ऑफ जो पावर आ रहा है ये लोड चला रहा है, ये भी लोड चला रहा है, और उसके अलावा फ्यू पार्ट्स जो है इसमें सप्लाई हो रहा है। जिसकी ये ऑरेंज कलर का इसका मतलब क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ कम है, जो पावर आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड कम है, और ज्यादातर जो पावर आ रहा है पैनल से वो क्या कर रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब इसको जरा सा आगे अभी समझ में आ रहा है, आगे बढ़े हम लोग, दिख रहा है ये? यस सर दिख रहा है। हाँ अब ये जरा सा देखिए, अब क्या हो गया हमारा ये अच्छा सेमी स्लाइड से आ गया। अब क्या हो रहा है, अब आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? अभी भी ग्रिड से सप्लाई आ रहा है, लेकिन जो ग्रिड से सप्लाई आ रहा है वो लोड को सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब क्या हो रहा है, यहां से जो पावर आ रहा था वो पावर क्या कर रहा है, इस लोड को भी दे रहा है। इधर जो लोड है इधर ये इन्वर्टर दे रहा है, एज वेल एज बैटरी भी चार्ज हो रहा है। मतलब जो ग्रिड से जो पावर आ रहा था उसका कंजम्पशन अब कम कर दिया। पहले क्या था, ज्यादा कंजम्पशन क्या था, ग्रिड से था। अब क्या हो रहा है, जो सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम आपने लगा रखा है उससे कंजम्पशन ज्यादा ले रहा है और इससे माइनर कंजम्पशन लेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका बिल जो है वो सेव होगा। लिख रहा है यहाँ पे सेविंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका सेव होगा, ग्रिड से आप कम पावर ले रहा है, ज्यादा से ज्यादा पावर कहां से ले रहा है, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम से ले रहा है टू ड्राइव द लोड। अब ये कैसे हो रहा है, तो ये आपका जो हाइब्रिड सोलर जो डिजाइन कर रखा है यही इन्वर्टर ही इस सारे फंक्शन को कर रहा है।
अब ये देखिए ये बैटरी क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है कि ये चार्ज हो रहा है, ये चार्ज है, लेकिन बस इसके इसमें जो कंजम्पशन, इसमें जो पावर आ रहा है वो कम आ रहा है। मेजर पार्ट क्या आ रहा है, इधर जा रहा है जो सोलर फोटोवोल्टेक से आ रहा है। लेकिन इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में आप देखेंगे कि मेजर पार्ट कहाँ से आ रहा था, मेजर पार्ट यहाँ से ग्रिड से आ रहा था। ये आपका जो बिल सेव नहीं हो रहा है, इसमें आपका बिल यानी कि ज्यादा लगेगा। और इस केस में देखिए बैटरी को भी चार्ज करने में, ये देखिए बैटरी जो चार्जिंग हो रही, ये आपका ह्यूज कैपेसिटी आ रहा है तो बैटरी जल्दी चार्ज होगा। लेकिन इसके उसमें क्या है कि जो चार्जेस इसमें जो पावर आ रहे हैं वो कम आ रहा है, लाइट पावर आ रहा है, ठीक है, बहुत कम आ रहा है। और ज्यादा से ज्यादा पावर ये लोड को सप्लाई किया जा रहा है जो पैनल से जनरेट हो रहा है। और माइनर पार्ट ऑफ द एनर्जी जो ये फुलफिल नहीं कर रहा है वही आप ग्रिड से ले रहे हैं, तो ये बेनिफिट हो रहा है आपको। अब ये देखिए, अब क्या है आपका ये सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम से कोई भी पावर नहीं लिया जा रहा है, डायरेक्ट जो ग्रिड से पावर आ रहा है वही यूटिलाइज हो रहा है। ये ग्रिड से पावर लोड को भी चलाने में और इस बैटरी को, जो जनरली हमारे घर में इन्वर्टर यूज होते हैं, ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी काम कर रहा है कि नॉर्मल इन्वर्टर है, ये ग्रिड से पावर लिया, लोड भी चला रहा है और ये बैटरी भी चार्ज, जैसे हम लोग घर में इन्वर्टर यूज करते हैं, इन्वर्टर लगा रहता है, जब तक लाइट आती रहती है हमारा बैटरी कंटिन्यू चार्ज होता रहता है, जब फुल चार्ज हो जाता है तो बैटरी रुक जाता है, उसी समय में हमारा फैन भी चल रहा है, हमारा फ्रिज भी चल रहा है, सभी लोड चल रहा है, तो वो सिचुएशन ये आ गया। अब क्या है ना ग्रिड पावर दे रहा है और ना ही आपका सोलर फोटोवोल्टेक पावर दे रहा है। जो बैटरी आपने चार्ज किया था वो बैटरी क्या कर रहा है, अब ये पावर सप्लाई कर रहा है, बैटरी डिस्चार्जिंग मोड में हो गया, यहाँ से पावर आ रहा है और ये दोनों लोड जो है आपका, ये जो लोड है इसको ऐसा प्रोवाइड हो रहा है, इसको नहीं जा रहा है क्योंकि बैटरी से सारे लोड आप नहीं चला सकते। जनरली क्या होता है जब हम इन्वर्टर यूज करते हैं तो हमारे घर में अब फ्रिज की कनेक्शन नहीं होते हैं, एसी की कनेक्शन नहीं होता है, स्लाइटली लाइट और फैन के होते हैं, तो उसी तरह से जो माइनर लोड है वो आपका बैटरी से ही रन कर रहा है। अब ये क्या है, अब जो आपका ये चल रहा है ना सोलर चल रहा है, नाइट का टाइम है, ना ही ग्रिड से पावर आ रहा है, ओनली किससे आ रहा है, ये आपका डीजी सेट से आ रहा है। तो डीजी सेट क्या कर रहा है, दोनों लोड को भी ड्राइव कर रहा है एज वेल एज बैटरी को भी चार्ज कर रहा है, तो ये काम कर रहा है ये, एंड दैट्स ऑल। ये है आपका, तो इस तरह से ये हाइब्रिड सिस्टम आपका वर्क करता है। मुझे लगता है कि थोड़ा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो ये था आपका सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम। अब ज्यादा और भी चीजें हैं तो मैं मेंटेनेंस वगैरह, थोड़ा सा मेंटेनेंस का है एंड रिपेयर, तो वैल्यू एडेड वाले के लिए उतना जरूरी नहीं, मेंटेनेंस की बहुत इजी है, बट यानी कि उसमें कुछ ज्यादा वो है नहीं, तो इसीलिए उसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। मेंटेनेंस जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं उनको अब डिस्कस करूंगा नेक्स्ट में। तो ऑलरेडी 11:30 होने को है, तो आज का सेशन मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ। मैं फीडबैक फॉर्म आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जितने बच्चे आज फीडबैक फॉर्म शेयर कर भरेंगे उन्हीं बच्चों को ऐसा सर्टिफिकेशन वैल्यू एडेड का डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेंगे। आपके ईमेल आईडी पे ये सर्टिफिकेट आ जाएगा, जब डिपार्टमेंट वाले ये डिजाइन कर लेंगे आपको भेज देंगे, आपके ईमेल आईडी पे खुद चला जाएगा ये। तो मैं धर्मेंद्र अभी मैं भेज रहा हूँ फीडबैक लिंक, ठीक है, तो उसको तुम लोग शेयर कर देना। ओके सर, ठीक है सर। गया ये ग्रुप में चला गया, आप डाल दो इसको। तो आप लोग फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है, वही अटेंडेंस की तरह काउंट होंगे। अब हम लोग जो ट्रेनिंग वाले बच्चे हैं वो मंडे से अब ऑनलाइन होंगे, कल सेशन नहीं होगा, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे और संडे का अब सेशन नहीं होगा। अब हम लोग मंडे से शुरू करेंगे, मंडे से कंटिन्यू शुरू करेंगे अप टू द फ्राइडे तक चलेगा। और इस फ्राइडे तक आपका सोलर थर्मल कलेक्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद सोलर थर्मल कलेक्टर और ये जो है आपका
मेंटेनेंस वगैरह ये कंप्लीट करेंगे। और देन हम लोग पीबी सिस्ट पे आएंगे। पीबी सिस्ट में कैसे डिजाइन करते हैं, 1 वीक आपका पीबी सिस्ट चलेगा, 1 वीक आपका ये चलेगा, और मेंटेनेंस वगैरह ये। और लास्टली 1 वीक में हो सकता है कि आपका कंफ्यूजन वगैरह, क्वेश्चन वगैरह, वो 2-3 दिन के लिए वो, और आपका ऐसा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन हम एंड करने जा रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? माइक ऑन कर लो, आप सभी लोग अपना अपना माइक ऑन कर लो, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो किस नाम से है आपका यूट्यूब पे चैनल? ये मेरे नाम से है, रंजीत कुमार झा के नाम से है। ठीक है, तो आप उस पे जाके, आई थिंक वो आप देख पाओगे कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट किया हुआ है। तो आपको जो लिंक भेज रहा हूँ, आप लिंक से देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा वीडियो। मैं एक एक करके सारे वीडियो भेजते भेजते जा रहा हूँ आपको। आप ट्राई करके देखना, रंजीत कुमार झा के नाम से सर्च करना, आरएसी के भी पड़े हुए हैं उसमें, और सोलर के भी हैं। तो सोलर वाले सेक्शन में देखना 97 वीडियो है, तो उसमें से आप जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं प्राइवेट किया होगा तो मेरे को बता देना, तो मैं उसको ऐसो पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, बाकी मैं, और एवरी डे है सो आपको जो जो जितना सेशन होता है उसके अनुसार मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ ग्रुप में। हाँ, जो भी बच्चे हैं वैसे, जो वैल्यू एडेड के लिए अभी तक कर रहे थे, जो 3rd ईयर में है और फाइनल ईयर में, उनके लिए बोल रहा हूँ। जो अभी 2nd ईयर में, उनके पास अभी चांसेस हैं आगे करने का, तो उनको जरूरत नहीं है, वो आगे कर लेंगे। जो 3rd ईयर में है और फाइनल ईयर में, उनको अगर ट्रेनिंग कंटिन्यू करना है यहाँ से आगे, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, एक गूगल फॉर्म में उसको भर दें, और 500 रुपी रजिस्ट्रेशन फी है। जो सर्टिफिकेशन जो मिलेगा कॉलेज की तरफ से नहीं है, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और वो सर्टिफिकेशन के ही चार्जेस हैं। ऐसे तो हम लोग इसके जो चार्जेस हैं 1500 हैं, जो 1000 रुपये ट्रेनर को मिलता है, जो मुझे मिलता, तो अपने बच्चे हैं आप लोग, तो इसीलिए जो है वो बेवफ है। तो सर्टिफिकेशन के बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है वो चार्जेस कर रही है, क्योंकि मैं वो सर्टिफिकेट नहीं बना के दे रहा हूँ आपको। अगर मेरे तरफ से होता, कॉलेज की तरफ से होता, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसको इच्छा है, नहीं इच्छा है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऑफ कर रहा हूँ मैं सेशन आज। ओके सर। ओके, बाय।
अनिष्का और इसको क्लास हो रहा है। व्यास भैया का क्लास हो रहा है। हाँ? क्लास हो जाएगा तब अभी क्लास हो रहा है। क्लास हो रहा है। ऑनलाइन क्लास हो रहा है। बाद में आना। मछली का है क्या? जो बड़ा ना कार्डबोर्ड है ना उसको तो कटा हुआ है इसलिए समझ नहीं मछली है। हाँ ये ना कार्डबोर्ड है ना कटा हुआ तो दे दोगी ना मछली। दो स्टूडेंट और आ गए, दो स्टूडेंट और। कितना हो गया? 21 दो गेट खुला ही था। छोड़ो बाल मत खींचो, बाल मत खींचो, छोड़ो ना। हाँ छोड़, छोड़ ना। ठीक है छोड़। ना खराब करो, ना मत बना, छोड़ो। फिर छोड़। देखो कितनी अच्छी। नहीं छोड़ दो, छोड़ दो ना। कैसे कर रही? अरे नहीं दर्द कर रहा है, छोड़। दर्द हो रहा है? हाँ छोड़, छोड़, छोड़ ना। छोड़ तो दिए। छोड़। एक बस एक। छोड़। छोड़ दी। ये देखो कैसा है? छोड़ बहुत अच्छा। बहुत अच्छा चिपका दो।